वाइड स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती कर देते हैं कि वाइड आप ये सोचो कि आप कोई कोर्स ले लो, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप स्टोरी टेलिंग आपको खुद से ही वो सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है दैट जस्ट कीप चैट जीपीटी पे वो अपने थॉट्स को डाल रही है, शी इज जनरेटिंग कंटेंट फ्रॉम देयर, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शी गेन गुड फॉलोअर्स, अच्छा है, शी इज गेटिंग गुड क्लाइंट्स, तो अगर वो यूज कर रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेजरली जो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, वो होता है आपका The only thing that can beat competition is your. Hello everyone. Today we have Kanak Parihar with us, and I am excited for this session. But more importantly, thank you so very much, Kanak, for taking out time to be here. That too on Sunday evening. Hi, Sinmay. Firstly, thanks to you for inviting me for this podcast. And I'm really very excited for this. And just begin it. Perfect, perfect. Okay, so before going ahead, I really want to take a moment and like be very honest, and not this, and it's not because to promote Kanak or like that, but the way you present yourself on LinkedIn, the way you write LinkedIn post, Kanak, it's commendable. I must say, you are doing a fantastic job, and And thanks to you and everyone who is going to watch this session. Like, you guys are supporting me, because of that only I've been able to write such great contents, and you guys are motivating me every day to write such good content and stay consistent on LinkedIn. Thanks to you all. Definitely, definitely. Okay. So before going ahead into personal branding and LinkedIn thing, I want you to tell us about yourself, about your background, and जो भी आप कर रहे हो, why is that important? So, a quick intro about me, like why I started personal branding. So, like, I guess a year back, 1.5 years back, I was working with a founder. So there I was working as a HR, but the person knew, but my founder knew that I love writing. So he just told me, like, if you love writing, why don't you write for me? Like, why don't you handle my social media pages and all? Because it's a startup. So in startup, we have many opportunity to explore, not just our niche, like my domain only. Like, if I'm working as HR, it's not like I have to work that only. We can choose other domains as well. So he just said that he just take just manage my other social media account. So I just started managing his Instagram first, then YouTube, then like few posts of LinkedIn as well. So like, I just told about this thing to my friends. Like, my friends, like, they have seen that his post had got millions in views. So my friends said that if someone is getting good views from your content, why you're not writing content for yourself? Why you're not started building your personal brand? So it's just because of my friends that I started writing on LinkedIn. And to be very honest, I've been a very introvert child. So, like, this is the main reason that I started very late on LinkedIn, because I was very conscious, like, how I have to face, like, how I have to put my pictures, because I'm not that confident to put my pictures. But slowly I started writing the post, and then later, like, after 2 to 3 months later, I just started posting the content with my pictures. So you guys have only supported me, and because of you all, I just got that courage to start building my personal brand. Right, right. Perfect, perfect. Amazing. So I think, kind of the skill of writing, I think anything on this planet, like anything which is blockbuster, whether it's a blockbuster movie, whether it's a YouTube video, I think the fundamental thing or the जो एक चीज है जो कि उसकी सक्सेस डिफाइन करते हैं, that is the script, that is the writing. And I Exactly, think everyone exactly. should learn this skill, learn this art of write effectively and present you know him or his Exactly. or her thoughts, right, right, definitely. Because you should be good at storytelling. Okay. Because storytelling is like applicable everywhere. Even if you're an entrepreneur and you have to connect with any investor to raise the fund, there also you have to do the storytelling. You have to tell about your product. You have to tell about your services. Because the person who is good at representing his words are more likely to get a success. Because like, अगर मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा है, अब मैं कितनी भी अच्छी स्कॉलर क्यों ना हो, एंड इफ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, then no one is going to, like, even अगर आप इंटरव्यू में आप जा रहे हो, and if you are not able to speak, if you are not able to present yourself, interview is not going to hire you even if you are having a good academic record. So you have to learn like आपको writing skill अच्छी होनी चाहिए, storytelling अच्छी होनी चाहिए, if you want to start building your personal brand. Right, right, perfect, perfect. Kanak, can you just extend this point about storytelling? तो थोड़ा सा आप बता सकते हो इसमें कि exactly कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है while writing a LinkedIn post? 2-3 अगर टिप्स यहाँ पे देना हो तो.
सी देयर इज नथिंग कि आपको कोई बहुत लाइक हाई फाई इंग्लिश की जरूरत है. यू जस्ट नीड अ बेसिक स्किल्स. आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लाइक अगर कोई इकोनॉमिक्स का बंदा है, इकोनॉमिक्स का बंदा, अब इकोनॉमिक्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग को मोस्टली जो हमारा मतलब पोस्ट होता है दैट इज अराउंड लाइक स्टेट, जो मतलब हमारे स्टार्ट्स होते हैं. अब इस स्टार्ट्स को हाउ वी आर मोल्डिंग, कैसे हम उसको स्टार्ट्स को भी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली स्टार्ट्स तो गूगल पे भी पढ़े बट पीपल आर, हम वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे हम उस स्टार्ट्स को इतने अच्छे शब्दों में प्रेजेंट करें कि लोग उसको देख लें. आपका जो हुक होता है, योर हुक शुड बी वेरी आई कैची, बिकॉज द हुक इज द मेन थिंग. बिकॉज लाइक अगर आप पिक्चर भी देखने जाते हो, अगर आप पिक्चर का हुक अच्छा है, आप देखने जाओगे, वो थोड़ा आई कैची होना चाहिए, अलग सा होना चाहिए. भले आपका कंटेंट अंदर का कैसा भी हो, आप अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखो, लेकिन इफ योर हुक इज नॉट गुड, नो वन इज गोइंग टू रीड इट. सो आपका हुक बहुत अच्छा होना चाहिए. देन कम्स टू योर लाइक मिडल पार्ट. आपको मिडल पार्ट बहुत अच्छा लगना चाहिए. देन यू हैव टू राइट अ गुड सीटीए. अब सीटीए इज व्हाट, लाइक कॉल टू एक्शन. लाइक इफ यू वांट टू सेल आउट एनी सर्विसेज, यू हैव टू मेंशन दैट आउट. अब आपको डायरेक्टली उस चीज को पिच नहीं कर रहे हैं कि जस्ट गो एंड बाय माय सर्विस. नो, यू हैव टू मोल्ड इन सच अ वे कि वो लगे भी नहीं कि यू डोंट हैव टू बी सेल्सी इन योर पोस्ट. आपको इनडायरेक्ट वे में उसको चीज मेंशन करनी लग चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है एंड इस वजह से आपको ये चीज लेनी चाहिए और मेरा ही प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज क्यों लेनी चाहिए. You have to mention these three few things in your CTA. Right. So, and if we come again back to our main points, how we can do storytelling. Storytelling is just like a art, and we have to master it just by like time. ऐसा नहीं कि आप एक दिन में उस चीज को सीख सकते हो. कोई भी आप ये सोचो कि आप कोई कोर्स ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता. आप स्टोरी टेलिंग आपको खुद से ही वो सीखनी पड़ेगी. और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है दैट जस्ट कीप फॉलोइंग द बिग क्रिएटर्स इन योर इंडस्ट्री, like those who have having good number of followers or those who are writing from long time. It's not that कि followers ही जरूरी होते. कुछ लोग, those people are sitting with 2k 5k, they are also writing good storytelling, they are doing good storytelling. So just go through their content, try to understand what type of things they are writing. उसके हिसाब से कुछ कुछ अपने वो करना स्टार्ट करो. अभी यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट देयर एंटायर कंटेंट, यू जस्ट हैव टू टेक द आइडिया कि दे हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट एंड देयर ऑडियंस इज लाइकिंग. And also there is one more thing in storytelling. अभी आपको like if we are going to write for a marketing, ठीक है, अब आपको मार्केटिंग के लिए लिखना है, अब आप वो फाइनेंस के बंदे, तो आप उससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो. आप एग्जैक्टली वो चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा मतलब आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्राफ्ट योर कंटेंट. एंड Right. स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू लाइक आपको खुद से टाइम के साथ ही सीखना पड़ेगा. वो सीख जाओगे. जस्ट कीप चेकिंग द कंटेंट ऑफ अदर पीपल एंड फॉलोइंग अदर बिग क्रिएटर्स और लाइक द नैनो क्रिएटर्स, माइक्रो क्रिएटर, एनीवन जो भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर रहा हो. Right. Perfect. Perfect. So it's about observation, observe like big people, the big creators, and more importantly, execute upon that. I think we learn, Exactly. by doing, we learn by, writing You different have, content and just posting that. yeah, you have to observe, you have to analyze. Firstly, you have to observe that what type of content is trending in the market, what type of content your audience is going to like. Then you have to analyze कि हाँ ये चीजें हम इसको और ज्यादा लिख सकते हैं, इस टाइप से हमारा बहुत अच्छा चलेगा. And then you have third parties that you have to execute it. Right, right. Perfect, perfect. Okay. Okay, so let's come back to the center, that is personal brand. So tell us, Kanak, that why building a personal brand in 2024, that too on LinkedIn, which has highest organic reach right now, is important. See, like we firstly why I started personal branding, I will come to that. Then I will tell that why personal branding is important. As you're saying that on LinkedIn, majorly the like 70% content that we are posting is in the writing format. We don't have to make a video, okay? And we and most of the people are also not sharing their pictures. There are half of the population who used to share their pictures, and most of them just shared like the posters and all. So if you are an introvert, because I told you this thing, because yesterday only I just got a DM from one of my connection and she told me that I'm an introvert and I love content creation, but I can't make videos. I'm having a fear of first facing the camera. So I just suggested her, why don't you start making your content on LinkedIn? Because on LinkedIn we don't have to रिकॉर्ड और सर. हाँ, ऑल्दो आई नो कि अभी रिकॉर्डिंग रील्स वाली चीज आने वाली है और लिंक्डइन इस पे वर्क कर रहा है, बट अभी इनिशियली वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ क्राउड of like making videos. So you can start making your content on LinkedIn if you are an introvert. Apart from that, if you want to like start content creation, so LinkedIn is the best platform because यहाँ पे आपको easily organically अच्छा engagement मिल जाता है. You are not going to get ट्रोलर्स ओवर है. ट्रोलर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज इफ ऑन अदर यू कैन सी, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कंटेंट बनाओ, दे आर गोइंग टू ट्रोल यू. बट इफ यू आर मेकिंग योर कंटेंट ऑन लिंक्डइन,
people are not going to troll you. Like at least 99% people are going to support you. There will be 1% people who are Yes. going to like troll you, but you are going to get good support. Yes, I So if agree. you're a newbie, you always seek for a support. बिकॉज आपको धीरे धीरे जब आप मेच्योर हो जाओगे, लाइक आपका कंटेंट अब वो चलने लगे, तो आप इतना ध्यान भी नहीं दोगे आपके पोस्ट पे कौन क्या कमेंट करे. बट इनिशियली व्हेन यू आर इन योर स्टार्टिंग फेज, you always see for the comments like what people are commenting on your post, how many like people are liking your content, how many people are appreciating you. So because that is going to motivate you to write good content. And because initially at least if you are getting the troll and all, and you are like अब मैं तो डिमोटिवेट हो गया, नहीं इसका हो पाएगा. So LinkedIn is a very good platform. And apart from that, you are going to get good, like आप like Instagram पे आप किसी भी उस पे चले जाओ, you're not going to directly connect with the CEOs or the founders or the creators, because they are not going to revert you back कि अभी आप बहुत छोटे creator हो. But if you are on LinkedIn, you can connect with n number of people. They connect with you अगर आप अच्छे से personalized note उनको भेजा हुआ है. And कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, बिकॉज आई like initially I was also thinking that कि I am not a that big creator, I just sitting at so like 4K 5K. तो मतलब initially तो how they are going to connect with it, but yeah, they have responded with me. हाँ, but you have to send a very personalized note. Apart from that, one thing that really works is that कि आप उनकी post पे regular engagement करो. I just connected with one of the creator. So when I just messaged that text, and when he accepted my request, he just said me one thing: I know you daily commented on my post, and I just see you are a regular like commenter on my post. हाँ, so these are the things that you can do. And what you can best thing you can do, आप ना notification on कर लो. अगर आपको, if you want to add Chinmay on your post and Chinmay is not responding to you, what you can do, tell these to comment करो. 10 दिन 15 दिन just go and comment, and definitely that person is going to कि हाँ भाई इतना कौन comment कर रहा है, आ रहा है. और ये नहीं कि don't use that one word 3 word comments. No, आपको एक अच्छा proper commenting करनी होगी. Commenting is the best thing that you can do to grow your like आप अपना पेज ग्रो करने के लिए, अच्छे कनेक्शंस लाने के लिए कमेंटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ये चीजें करो, अच्छा खासा आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, अच्छे लोगों से कनेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा, बड़े क्रिएटर से जो लाइक इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आप लाइक पर्सनल ब्रांड ग्रो करना चाहते हो, लीड्स लाना चाहते हो, सीईओ से मिलना चाहते हो, किसी से भी तो वो आपको मिल सकता है. किसी एचआर से मिलना चाहते हो जस्ट फॉर पर्पस, तो वो कर सकते हो. सो बस अपने को कंटेंट अच्छा रखना है. एंड नेवर पुट अ नेगेटिव कंटेंट कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हो, ये करो, नहीं. बिकॉज अगर आपको कोई भी इंसान होता है, वो देखता है कि आप कैसे टाइप ऑफ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और कैसे लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो. बिकॉज लिंक्डइन पे आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके कि कैसे कैसे आपने लोगों के ऊपर वो कमेंट किया है, बिकॉज ये Right. उसका सबसे बेस्ट फीचर है. Yes, yes, yes. So always be very positive whenever you are making your content, and be thoughtful what you are posting. Right, right, right. Okay, I think that was the perfect, guide, complete guide of, personal branding. And I totally agree, Kanak, with you when you say कि comment करो जाके, because ये exact strategy मैंने भी follow की थी. Creators के post के ऊपर जाके मैंने comment किया था, and they started like noticing me. And जब मैं उनको DM करता था, they used to respond. So it really works. Yeah. Exactly. Yes. Okay. So like moving on to the next part, जब कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल है, जब वो स्टार्ट कर रहा है लिंक्डइन के ऊपर टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, एक देयर इज अ प्रोसेस ऑफ नीश सिलेक्शन. हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस चीज के ऊपर बोलना है. सो फर्स्टली टेल अस कि आपने कैसे डिसाइड किया था अपना नीश, एंड उसके बाद हमें एक प्रोसेस दीजिए कि इज देयर एनी फ्रेमवर्क टू डिसाइड अ नीश. सो जस्ट टेल अस अबाउट दैट, द नीश सिलेक्शन प्रोसेस. As I told you that I was working as a HR. So what I did, if you're going to see my previous post, like मतलब जब personal branding मैंने start भी नहीं की थी, मतलब ऐसे random post अपन डालते थे, तो I used to write majorly for the job seekers, career से related, मतलब internship से related, college से related, all these things I used to post. And do you know, people like majority of the people on my like on my LinkedIn are from DU, and they are the students. But हुआ ये कि initially they responding to my post, उन्हें मेरी पोस्ट अच्छी नहीं लगी. I was like, why they are not responding to my post? Because अभी कॉलेज का बच्चा, उसको करियर से रिलेटेड ही चीज चाहिए होगी. तो what I did, हाँ, मैंने स्टार्टिंग में I started with career and all, but then I later on just changed my niche and I started posting regarding personal branding, marketing, entrepreneurship. And they are the people जो वही ड्यू वाले बच्चे हो या फिर जो भी कॉलेज के बच्चे हैं, they started responding to my post. Then I realized that they are not interested in my career stuff, they are more interested in my marketing stuff. सो होता ये है कि मेरे को करियर में भी इंटरेस्ट था और मुझे मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट था, पर्सनल ब्रांडिंग में भी इंटरेस्ट था. सो अभी इनिशियली आई वाज नॉट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या मेरी ऑडियंस को पसंद होगा. सो आई डिड द टेस्टिंग वाला पार्ट कि अभी मैंने टेस्ट किया कि ये चीज एक्सपेरिमेंट किया कि चलता है कि नहीं. अभी सेम गोस टू इफ समवन इज अ न्यूबी एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर लाइक
नीश, अगर उनको नीश अपना मतलब सेलेक्ट करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो मेन थिंग ये होती है कि आप जिस भी चीज में पैशनेट हो लिखने के लिए। अब लाइक इफ आई से कि आई लव टू राइट करियर, अब मैं करियर के बारे में लिख सकती हूँ, मैं 10 साल भी लिख सकती हूँ, 15 साल भी लिख सकती हूँ, मेरे पास कंटेंट नहीं पड़ेगा। खाली मार्केटिंग के लिए मैं लिख सकती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लिख सकती हूँ। अब आई कांट राइट अबाउट टेक पोस्ट, हम आई हैव अ क्लाइंट, आई यूज टू राइट फॉर देम, बट मैं अपने पेज के लिए नहीं लिख सकती हूँ, मुझे नहीं, मेरे को नहीं हो पाएगा मेरे से। आई कैन राइट अबाउट फाइनेंस बट आई कांट राइट अबाउट द टेक, आई कांट राइट अबाउट द एआई। सो यू हैव टू नो कि आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, आप पैशनेट हो प्लस वो कैसे, वो मतलब पैशन आपको, मतलब आप आगे चल के उसको मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे उससे पैसे अर्न कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लाइक इफ लाइक अभी आई गेस अ मंथ बैक आई जस्ट वॉट अ डियर कि आई एम अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट एंड शी वाज जस्ट हैविंग 5K फॉलोअर्स, तो शी वाज लाइक कि लाइक आई एम नॉट गेटिंग गुड कोलैब्स, और अभी लोग मेरे पोस्ट पे एंगेज भी नहीं कर सकते बिकॉज आई एम, मैं मेरा इतना अच्छा कंटेंट नहीं है। सो एंड ऑल्सो आई वांट टू नो क्या मैं अपनी नीश चेंज कर दूं। तो मैंने कहा कि लाइक इफ यू, आपको अपनी नीश क्यों चेंज करनी, पहली चीज तो ये कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। तो शी सेड कि बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग पोस्ट बना रहे हैं। तो आई सेड कि अगर बहुत कम क्रिएटर्स है, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि 10 क्रिएटर आपकी इकोनॉमिक्स में बना रहे हैं और देयर आर 100 पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट इन अदर निश, तो आपका तो वहां पे क्राउड बहुत कम है, आप इजिली वहां पे सक्सीड कर सकते हो, उन 10 लोगों से आराम से कम्पीट कर सकते हो, अच्छा कंटेंट बना के उनसे स्टैंड आउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो आपको ब्रांड डील्स नहीं मिलती, आप कंटेंट अच्छा बनाओगे सबको ब्रांड डील्स मिलती है। बट ये है कि आपको इनिशियली बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को मतलब प्रेजेंट करना होगा, अपने कंटेंट को निखारना होगा। एंड इफ यू जस्ट पुटिंग दैट कॉपी पेस्टेड कंटेंट और आप कुछ भी पोस्ट करो, नहीं, यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि आप कैसे अपने कंटेंट को कर रहे हो। एंड सेकंड थिंग, ये आप जिस भी चीज के बारे में पैशनेट हो, आगे लॉन्ग टर्म में लिखने के लिए सिर्फ उसी निश को चूज करो एंड मेक श्योर कि आप एक बार थोड़ा इवेलुएट कर लो, क्या मतलब इंडस्ट्री में क्या वो निश चल रही है या फिर नहीं चल रही, कितनी मतलब उसकी ट्रेंड है, आने वाले 5 साल में कितना उसका ट्रेंड होने वाला है, कितना ग्रो करने वाला। और सच बताऊं तो जो भी निश है, XYZ, सारी निशेस ग्रो कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बस हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस का सबसे एक्सेप्शनल कौन है? शरण है। अब हम अगर किसी भी इसमें बात करते हैं, अंकुर वारिकू सर है, अब लाइक वो बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं, इज अ वेरी गुड ऑथर, इतने अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर सम एक्सेप्शनल क्रिएटर्स, तो आप बनने की कोशिश करो ना वैसे एक्सेप्शनल क्रिएटर। ऐसा नहीं कि कोई भी नीश आपकी ऐसी है जो मतलब वो नहीं हो रही है। हर को एक चीज तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, हर क्रिएटर का एक स्टैग्नेंट पीरियड आता है कि इसके बाद से वो ग्रो करना वो कर, लेकिन आप इनिशियली तो करो ना। ऐसा नहीं कि कोई भी नीश खत्म हो जाएगी एक बार में, हर नीश अभी ग्रो ही कर रही है। तो बी चूज द नीश जिसमें आप पैशनेट हो और आगे चल के आप उसको मतलब मोनेटाइज करा सको। परफेक्ट परफेक्ट। एंड कनक, व्हाट डू यू विल से व्हेन पीपल कंप्लेन कि बहुत कंपटीशन है, तो उन लोगों को आप कैसे, क्या रिस्पॉन्स है आपका? साइड यू द सेम थिंग, देखो कंपटीशन इज एवरीवेयर। आप कुछ भी काम करने जाओगे, आप जॉब में जा रहे हो, जॉब में इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं जस्ट फॉर अ सिंगल जॉब, आप क्या उसमें अप्लाई नहीं करते हो? आप सीधी सी बात है, एक प्रोफाइल के लिए 1000 बच्चा अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप तो डर गए वहीं पे कि 1000 बच्चे मैंने अप्लाई किया है, मैं तो इतना अच्छा हूं ही नहीं, मुझे तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप अप्लाई करते हो ना, आप रिस्क लेते हो ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, आप बिजनेस भी करो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ सामान, आपको वो चीजें रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइक वो हर्षद मेहता का डायलॉग है ना कि आपको वो करना ही पड़ेगा, अंटिल अनलेस आप वो चीज नहीं करो नहीं होगा। और हमने ये चीज आपको स्टार्टिंग में भी बोली कि आपको अपना कंटेंट बाकियों से अलग रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मेटिंग अलग रखनी पड़ेगी, आप कुछ यूनिक चीजें लाओ ना, कुछ मसाला लगाओ अपने कंटेंट में कि कैसे आपका कंटेंट बाकियों से अलग रहता है। देखो कंपटीशन हर नीश में है, कोई भी नीश अभी ऐसी नहीं बची, क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, जो भी हो। एक मतलब कॉलेज वाला बच्चा भी बन रहा है, अभी तो स्कूल वाले बच्चे भी कंटेंट डालना चालू कर दिए हैं लिंक्डइन पे। यस, राइट सो राइट। अभी कंपटीशन तो हर जगह पे है, बस आपको अपना कंटेंट अलग रखना है बाकियों से। या ओके, सो आई जस्ट वांट टू ऐड लाइक वन थिंग टू दिस, एंड आई थिंक कनक, आप भी मुझसे एग्री करोगे, द ओनली थिंग दैट कैन बीट कंपटीशन इज योर ऑथेंटिसिटी। आपको लाइक एग्जैक्टली, यू आर हैव टू बी यूनिक, एंड ऑथेंटिक। आपका, हाँ, आपके जैसा कोई नहीं है लाइक इस दुनिया में, सो दैट इज definitely definitely okay. Okay, so now Kanak, let's talk about some tips, some hacks about LinkedIn, if there are any. So हमें ये बताओ कि ये जो लाइक टाइमिंग, लाइक पोस्ट का जो टाइमिंग है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें मैटर करती है, एंड अगर करती है तो लाइक हाउ कैन वन come to that point where he knows when is the best time to post? इट टोटली डिपेंड्स कि आपका, आप किसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब लाइक इफ यू आर टारगेटिंग अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अभी वो सुबह के टाइम पे फ्री होगा, लाइक कॉलेज के जाने से पहले, तो वो
मतलब मेजरली वो 8 to 9 पे ही फ्री होगा, तो आप कोशिश करो अपना जो कंटेंट है वो या तो 7:30, मतलब 7:50 से 8:30 के अराउंड आप पोस्ट कर दो, ठीक है, ताकि जो भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो उनको इतना ही टाइम मिलता है, तो आप उस ड्यूरेशन में अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग होते हैं लाइक जो मतलब लाइक फ्रीलांसर्स वगैरह हो गए, फ्रीलांसर्स तो घर पे होते हैं, तो उनके लिए अगर आप देखोगे तो उनका जो कंटेंट होता है वो भी आप ये 9 to 10 के बीच में आप पोस्ट कर सकते हो। बट मेजरली जो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, वो होता है आपका 8 मतलब 7:50 के अराउंड, और आपका 9:30 तक आप पोस्ट कर सकते हो, ये आपका मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इवनिंग, तो इवनिंग में आपका सबसे बेस्ट टाइम रहेगा 6 to 8, 6 to 8 के बीच में आप पोस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस है, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आई एम सेइंग कि मेरा 7:50 पे वर्क करता है तो आपका भी वो वर्क करेगा, इट टोटली डिपेंड्स है कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है, और ये चीजें आप मतलब खुद ही आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बता दिया, उसमें से आप कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज कर लो, कि मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कितने बजे पे एक्टिव होती है। सो कनक फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ नहीं है, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको रेगुलर पोस्टिंग नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ हो रखा है, और बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो से रखा है कि क्या हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देखो जो इट डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस क्या आप पसंद करती है। बहुत सारे क्रिएटर्स है वो हफ्ते में 3 बार भी पोस्ट करते हैं, स्टिल दे आर गेटिंग गुड एंगेजमेंट, एंड कुछ क्रिएटर बहुत डेली भी पोस्ट करते हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एंगेजमेंट। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप कौन से टाइप को कंटेंट डाल रहे हो अपनी पोस्ट पे, आपको क्वालिटी कंटेंट डालना होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप रेगुलर पोस्टिंग भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, आप नहीं भी पोस्टिंग करोगे तो आपको दिक्कत होगी। बस आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो आप कभी भी पोस्ट करो, और आप फ्रीक्वेंसी पे इतना वो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, आप 3-4 दिन भी पोस्ट कर सकते हो, अगर इफ यू आर हैविंग टाइम आप हफ्तों के 7 दिन भी पोस्ट कर सकते हो, इससे कोई भी आपकी उस पर डिपेंड मतलब बाहर। लेकिन आप एंगेजमेंट कोशिश किया करो कि रोज कर लिया करो, क्योंकि आप एंगेजमेंट करोगे तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी लोगों में विजिबल रहेगी। एंड इफ वी कम टू कि हाउ मेनी कमेंट्स वी हैव टू डू ऑन एन एवरेज, जो मतलब जो न्यूबी है स्पेशली फॉर देम आई एम टेलिंग दैट कि यू शुड डू एटलीस्ट 30-40 कमेंट्स इन अ डे। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम, इट्स ओके, एटलीस्ट यू कैन चूज योर 10 जो भी आपको बड़े क्रिएटर्स के साथ या फिर जुड़ना है, या फिर कोई भी आपकी कोई लीड मतलब जिसको आपको कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई भी मतलब जिस कोई भी अपनी एक लिस्ट बना के एक्सेल शीट पे बना के रख, गूगल शीट पे बना के रख लो, एंड जस्ट ट्राई टू एंगेज विद दोज मेनी पीपल। आप देख लो कि वो डेली कितने बजे एक्टिव होते हैं, आप उनसे मतलब एटलीस्ट उनमें 10 से 15 लोग तो आपके होंगे ही ना, 10 से 15 लोगों से रोज एंगेज करो। Perfect, perfect. And what do you think about the post limit, the word limit, the character counts, ये सारी चीजें इसमें कुछ ऐसे नंबर है कि हमें इतने रेंज में ही रखना है पोस्ट? See, just try to make your post concise and crisp. आप जितना छोटा रखोगे, बिकॉज अभी देखो लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, 30 सेकेंड 15 सेकेंड वाली जो पोस्ट है दे आर लाइक बूमिंग, वो अच्छा उनको लाइक मिल रहा है। बट अभी ऐसा है लाइक आप यूट्यूब पे भी देखो, यूट्यूब पे भी उन्होंने शॉर्ट्स का वो करते हैं, सेम गोज टू लिंक्डइन ऑल्सो, जितनी छोटी आपकी पोस्ट होगी उतना लोग जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी देखो स्कूल में अगर कॉलेज में आप कभी भी होगे, आपको जो छोटी चीज होती है वो जल्दी याद हो जाती है, आप बड़ी चीजें आप नहीं याद करते, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप बड़ी चीजों को जल्दी अवॉइड करते हो। तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके छोटा बनाओ, और बस छोटे थोड़े ही कंटेंट में अच्छी बात है, मतलब आपकी जो भी थॉटफुल मतलब जो भी थॉट्स उनको अच्छे से प्रेजेंट कर दो, क्राफ्ट कर दो। सो मीशो इट्स नथिंग कि आपको कितना वर्ड लिमिट रखनी चाहिए, कंसाइज रखो, बस इतना ही कहूंगी, कंसाइज रखो और अच्छा आई कैची बना के रखो। बस मेक श्योर कि आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ नहीं, आपको स्पेसिंग करनी, वाइट स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती कर देते हैं कि वो वाइट स्पेसिंग नहीं रखते हैं, एंड फिर वो बहुत ज्यादा मेसी लगने लगता है। तो वाइट स्पेसिंग रखो, उसके अलावा आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, उसमें मतलब इमोजीज यूज कर ले यार, मतलब बहुत इमोजीज नहीं बट 1-2 इमोजीज यूज कर, थोड़ा ह्यूमन टच आ जाता है, वरना फिर वो लगने लगता है कि अरे तो बहुत ही वो रखा है। थोड़ा ह्यूमन टच रखो, क्योंकि इमोजीज से थोड़ा अच्छा लगता है। Right, perfect, perfect. Okay, so Kanak, as we're talking about this, the how to structure this post and all, मैंने आपका एक कंटेंट देखा था लिंक्डइन के ऊपर ही आज ही, एंड आई थिंक ये पहला ऐसा कंटेंट पीस होगा जो मैंने पढ़ा था विच सेज दैट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल हु आर यूजिंग चैट जीपीटी टू राइट कंटेंट। आपने वहां हाँ पे बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया था, एंड आई जस्ट वांट यू टू ऐड टू दैट पॉइंट कि थोड़ा सा और इसके बारे में बात की। इवन यू मस्ट हैव सीन कि उसमें मैंने एक मैसेज भी मतलब अटैच किया था, गर्ल जिसने अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट किया। सो सी लाइक आई विल, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कंटेंट क्यों पोस्ट किया था। इसके पीछे रीजन लाइक आई हैव सीन सो मेनी सीनियर क्रिएटर्स, लाइक बड़े क्रिएटर्स जो हैं लाइक
एज में भी बड़े लोग हैं, एंड दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग द न्यू बीज हु आर यूजिंग चैट जीपीटी. Yeah. सी लाइक आपको अच्छा, आपको फॉलोअर्स मिल गए, आपको सब कुछ मिल गया, आपकी अच्छी इंग्लिश थी, ये सब चीजें थी, आपने बना लिया कंटेंट. बट इफ अ न्यूबी इज यूजिंग अ चैट जीपीटी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. लाइक एज आई मेंशन कि वो यूपी बोर्ड की, शी वाज अ गर्ल ऑफ अ यूपी बोर्ड एंड शी वाज नॉट गुड इन इंग्लिश, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट शी लव्स राइटिंग. अब इफ शी लव्स राइटिंग, इफ चैट जीपीटी पे वो अपने थॉट्स को डाल रही है एंड शी इज जनरेटिंग कंटेंट फ्रॉम देयर, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. शी गेन गुड फॉलोअर्स, अच्छा है, शी इज गेटिंग गुड क्लाइंट्स. तो अगर वो यूज कर रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज कि अब आपको एग्जैक्टली चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना. तो बहुत लोग ये करते हैं कि वो एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं. नहीं, ये आपको सब उसको अपनी वो क्या कहते हैं, अपने उसको ना, मतलब बेस्ट बना, मतलब अच्छे से उसको परफेक्ट Repurpose बनाने के लिए, करना. Yeah. रिपर्पस करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए यूज करना होगा, और थोड़ा बेटर बनाने के लिए, अपने वर्ड्स को एनहांस करने के लिए यूज करना होगा. यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट द एंटायर कंटेंट. आपको कॉपी पेस्ट कभी कोई भी कंटेंट नहीं करना. लेकिन आप चैट जीपीटी से भी ले रहे हो ना, उसके बाद भी आप उसमें अपने वर्ड्स यूज करो, फॉर्मेटिंग चेंज करो, क्योंकि देखो चैट जीपीटी वो एआई है, वो एआई के हिसाब से आपको देगा. आपको उसमें अपना ह्यूमन टच लेके आना है. बस आपको उसमें वर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे, आपको सेंटेंसेस अच्छे मिल जाएंगे, बाकी आपको पूरे ह्यूमन टच लेके आना है. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. लाइक इफ यू आर अ न्यूबी, तो अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, इवन अभी बहुत अगर आप सीधी सी बात सोचो, मैंने उसमें पोस्ट में भी यही चीज मेंशन की थी, एआई आया ही इसीलिए जस्ट टू मेक आवर वर्क इजी, आप इजी बनाने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए. तो अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या ही गलत है. बस हाँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको ह्यूमन टच उसमें रखना है. और एआई का बिल्कुल भी वो लगना नहीं चाहिए कि वो एआई जनरेटेड है. बस ह्यूमन टच रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप चैट जीपीटी अगर यूज भी कर रहे हो तो, या फिर कोई भी एआई यूज कर रहे हो. Yeah. No, no, I completely agree with Kanak. And मैंने एक पॉडकास्ट में ये सुना था. The podcast was by Naval Ravikant, and उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज कही थी, that the only thing that will take you to the heights is leverage. And I think ChatGPT is leverage एग्जैक्टली, for lot of people. So we can use that. We can एग्जैक्टली, take his help. हाँ, तो हम उसका हेल्प लेके थोड़ा सा अपना अपना हमारी ऑथेंटिसिटी भी वहाँ पे रहनी चाहिए पोस्ट में, तो पूरा ही कॉपी पेस्ट. एग्जैक्टली, Definitely. एग्जैक्टली. Yeah. So yeah, I think that was the complete, LinkedIn guide, the complete LinkedIn guide for 2024. So that was amazing session, Kana. We talked about so many things, and I think this will help, a lot of thousands and thousands of people out there. So yeah, thank you so much, Kanak, for being here and sharing lots of beautiful and valuable insights. So I think that was the complete guide to LinkedIn 2024. Thank you so much, Kanak, and I wish lots and lots of followers to you. Thank you so much, and thanks to you for inviting me. And it was really like a very nice session. And I just hope so जितने भी newbie especially उनको इस चीज से benefit हो, because big creators they are literally doing best in their field. बस हाँ, जो भी especially जो newbie है उनको इससे अच्छा वो help मिले. And if any person who wants to start personal branding, or they want to learn how to grow on LinkedIn, you can either reach to Chinmay or you can reach out to me. And Yes. we are always there to help you all. And just thank you so much, everyone. Bye bye. Perfect.